Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So पहले तो thank you for coming to this video and hope you all are as excited as I am to start this series. So फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है इसीलिए मैंने सोचा था कि इसको फेस्टिवल्स के बाद स्टार्ट करें बट आई थॉट शुभ काम में देर कैसा तो लेट्स स्टार्ट. तो पहला दिन so we'll start with the first problem statement and without delaying much सबसे पहले तो दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो ठीक है. इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट एंड कीप अपलोडिंग मोर वीडियोस फॉर यू गाइस. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. Okay, so now we'll start with our problem statement. So as you can see on my screen, we have our first problem statement, which is about merging strings alternately. Okay, so we'll first break down the problem. So basically, हमारा like first let's just take the time out and read the problem statements. So the problem statement says that you are given two strings, word 1 and word 2. Merge the strings by adding letters in alternating order, starting with word 1. If a string is longer than the other, append the additional letters onto the end of the merged string. So now we have a quick idea about what the problem statement is, but I'll break it down for you. Don't worry. If you are clear with the problem statement ki kya hai, because what I am going to follow the approach is like first break the problem statement in such a way that it's easy for you to easily code it. Okay. So my main motive is to break down the problem statement in such a way and serve it in your plate that you can easily code that code if you know the syntax and all. So I'll be coding in Python. So don't have to worry much more about the semicolon or anything like that, because in Java or any other language there is a lot of issue, but in Python you just have to worry about indentation. That too, it is very simple and it's like you are reading any English language, so it's just as simple as that. So बेसिक आइडिया लग चुका है. मैं सिंपल हिंदी में भी आप लोगों को बता देती हूँ क्या करना है कि वी हैव टू वर्ड्स. ओके, हमारे पास दो वर्ड है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक वन बाय वन ईच लेटर्स फ्रॉम both the words. Like there is word 1, there is word 2. We'll take first letter from word 1, we'll take first letter from word 2, then second letter from word 1, then second letter from word 2. Like that we will merge it. जिसका भी लेंथ कम हुआ, इफ अ स्ट्रिंग इज लॉन्गर देन द अदर, कोई भी एक तो छोटा हो ही सकता है, सेम वह तो फिर अकॉर्डिंगली हो जाएगा. अगर एक भी वर्ड, इफ एनी ऑफ द वर्ड इज स्मॉलर, द लेंथ इज स्मॉलर देन द अदर वन, व्हाट वी विल हैव टू डू, विल हैव टू अपेंड इट इन द एंड. ठीक है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम सिंपल शब्दों में मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू गाइज एंड आई होप इट इज क्लियर. Problem statement. Now we'll see few of the examples. Word 1 and word 2. ABC दिया हुआ है word 1 में, you can see. Then word 2 is PQR. Okay. What I have explained, take the first letter from word 1, take the first letter from word 2. Accordingly append करते जाओ. ठीक है. सिंपल सा अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें. ठीक है. Now what I'll do, I'll just tell you a pseudo code कि कैसे कर सकते हैं. ठीक है. So basically we'll start with a small example. I have word 1 which is ABC and word 2 PQR. Now according to the problem statement, what I need to do, I need to iterate over the length of this variable and we need to check कि जब तक like any of the length is happening, like if there is the variables that are present there, then we'll keep moving. Otherwise, as soon as it ends, we will just take the one which is left and we'll just append it at the end. Got it? Clear? तो इसका मतलब what we will have to do, we'll have to check. In this case though, it is fine that it is having same length, right? It is having same length. But just in case, suppose it is like UT. Okay, UI suppose. Okay. Now in this case, like suppose my output will become A
P B Q C R. I've made it. A P B Q C R. What about UY? Right? So for that, what I need to do, I will just append it at the end. So कोड के हिसाब से आप सोचते हैं, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इटरेट करते जाना है. अब देखिए, अगर हम इटरेट करते जाएं इस वैल्यू में भी, इसके इसके लेंथ के हिसाब से, लाइक सपोज व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, 1 2 3 4 5, राइट, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस इज 3, राइट. बट अगर हम इसमें इटरेट करेंगे 5 times, I'll keep iterating. जैसे ही थर्ड के बाद जाएगा, it will tell me index out of range, or it will throw an error because it is not finding any value, right? So in that case, what I need to do, I need to first iterate. जहां तक हम लोग को वैल्यू मिल रहा है, हम उसका मिसमैच लाइक ऑल्टरनेट करते जाएंगे, ठीक है. अब जैसे ही एंड पे पहुंचे, तो वहीं तक वहां पे हम क्या करेंगे, जो एंड वाला जिसका भी बचा हुआ रहेगा उसको इटरेट करेंगे. अब इसके लिए सिंपल अप्रोच है, क्या करेंगे, फॉर लूप लेंगे, ठीक है. फॉर आई इन कहां से कहां तक, तो हम लोग को लेना होगा, अब एक रेंज लेना होगा, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड 1 कॉमा वर्ड 2. Got it? Minimum लेना है हम लोग को उसका, and then what we will do, we will just iterate it. We'll start iterating one by one and taking the value. So suppose before that, I'll create a variable result, which is an empty array, and then what I'll do, I'll start appending res dot append word 1 I ith इंडेक्स उसका, ठीक है, और रेस्ट डॉट अपेंड वर्ड 2 का ith इंडेक्स. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट आई एम डूइंग, जैसे जैसे इंडेक्स आएगा, जैसे सपोज हम यहाँ पे कमेंट डाल के आप लोग को बताते हैं, 0th इंडेक्स के लिए 0th इंडेक्स वाला वैल्यू a आएगा, वो रिजल्ट में a हो जाएगा ऐड, फिर यहाँ पे b, यहाँ से p लेगा और p ऐड हो जाएगा रिजल्ट में. फिर जब फर्स्ट इंडेक्स आएगा, तो उस टाइम पे हम लोग का b आ जाएगा, तो a p b हो गया यहाँ पे अपेंड, यहाँ पे. फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आई जस्ट राइट इट, ओके. यहाँ पे a आ जाएगा हमारा फर्स्ट इटरेशन में, देन यहाँ पे हमारा a और p हो जाएगा, देन यहाँ पे हमारा a p b हो जाएगा, राइट. फिर यहाँ पे हमारा a p b एंड q हो जाएगा, राइट. देन अगेन हमारा यहाँ पे a p b कॉमा सॉरी a p b एंड देन यहाँ पे हमारा फिर Q एंड C हो जाएगा, राइट. देन अगेन ये वैल्यू रहेगा, और उसके बाद हमारा सेकेंड वाला का दैट इज R आ जाएगा, राइट. लाइक दैट हमारा फॉर ईच इटरेशन इट विल कीप गोइंग. बेसिकली जैसे जैसे इटरेट कर रहे हैं, लाइकवाइज आवर वैल्यू इज गेटिंग अपेंडेड इन आवर रिजल्ट, right? ऐसे ही, if you're getting confused, let me clear it out again. Basically we are creating a loop starting from 0th index, and then we are just making appending it, like adding, उसको add कर रहे हैं हम लोग result में एक एक करके, right? अब क्या होगा, ये कब तक चलेगा, length of minimum of हमारा किसका होगा, ये इसका भी लेंथ हम लोग को लेना होगा, इसका भी लेंथ होगा, ठीक है. सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं और मिनिमम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और उस तक हम लोग इटरेट करेंगे. तो अब इन दोनों का लेंथ क्या है, इसका 3 है, इसका 5 है. व्हाट इज द मिनिमम ऑफ बोथ, द मिनिमम ऑफ बोथ इज 3, सो इट विल गो टिल 3. सो बेसिकली 3 अगर रेंज होता है, ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन डालना होगा दैट इज रेंज, ठीक है, जो कि यूज होता है इन पाइथन. व्हाट डज दिस डू, दिस फंक्शन range is actually nothing but it is taking from 0th index to n-1, whatever is the value that n is. So suppose यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेट होगी क्या आएगा, 3 आएगा, तो 0 से
टू तक, ठीक है, 0 1 2 तक। अगर हम लोग का n होता या सपोज हम लोग का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होता वो हम लोग का 5 होता, तो 0 से 4 तक जाते हैं, ठीक है। लाइकवाइज हमारा वैल्यू आएगा और ये हम लोग कहाँ तक करेंगे, c और ये r, ये दोनों इंक्लूड हो जाएगा, राइट। अब एंड में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अब बाकी वैल्यू भी तो करना है होगा, u एंड y को कैसे छोड़ सकते हैं, राइट। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, अब i का तो हम लोग को पता चल गया, i कहाँ तक गया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे i इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट, i को असाइन कर दिए, ओके। अब उससे क्या हुआ, अब i का ये रेंज बन गया है। अब हम क्या करेंगे रेस्ट में, ठीक है, अब चेक करेंगे कि इफ i is less than length of word 1, ठीक है। अगर हमारा लेंथ ऑफ वर्ड 1 बड़ा होगा i से, दैट मीन्स कि कुछ वैल्यूज वर्ड 1 का रह चुका है हमारा। तो इस केस में क्या करेंगे, रेस्ट डॉट अपेंड वर्ड 1, ठीक है, i से ऐसे कर देंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हम लोग का i वैल्यू से एंड तक वॉट एवर इज द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन वर्ड 1, इट विल जस्ट अपेंड इट, ठीक है। और फिर एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या पता वर्ड 2 रह गया जो इस केस में वैलिड है, वर्ड 2 का लेंथ छोटा मतलब रह गया है, ठीक है। i इज एक्चुअली लेस देन लेंथ ऑफ वर्ड 2, ओके। सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, rest dot append word I like this. Are you getting my point? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली यहाँ पे चेक किए कि मतलब उसका वैल्यूज कहाँ पे है, बट यहाँ पे एक मिस्टेक दिख रहा है हम लोग को। यहाँ पे i जो है हम लोग को वैल्यूज r तक तो हो गया, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे i+1 से स्टार्ट करना है क्योंकि ith रेंज तक यहाँ पे कवर हो गया हमारा, तो हम लोग उसको वापस से नहीं ले सकते, राइट। सो यहाँ पे हम लोग को i+1 करना होगा, लाइक एक इंडेक्स बाहर से, लाइक r तो हम लोग का कंसिडर हो गया है, ठीक है। यहाँ तक में हमारा i का वैल्यू क्या होगा, ये, तो यहाँ से तो हम लोग को नहीं लेना, कंसिडर नहीं करना है, वी डोंट वांट टू कंसिडर r, right? So what I'll do, I'll start from i+1 value and then I'll take the rest of the value from there, ठीक है। ये सिंटैक्स के बारे में अगर आपको कोई इशू है तो पाइथन का बेसिक एक वीडियो और मैं बना सकती हूँ, कमेंट आउट इन दिस वीडियो इफ यू वांट अ स्पेसिफिक like course like this for Python, for basic syntax से लेकर के advanced syntax तक, like advanced projects सब कुछ उस कोर्स में बनेगा। If you guys want it, I'll create it for you guys. Okay, so basically ये हमारा कोड है जो हम लोग सोच रहे हैं। Now let's just start our code and write it in the lead code. Okay, so we are here in our lead code and we are going to now see if it is correct or not, ठीक है। I've just pasted it directly from our doc, but हम क्या करेंगे अभी चेक कर लेंगे इंडेंटेशन वगैरह का इशू ना हो, क्योंकि पाइथन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडेंटेशन, ओके। और वो उससे ही हमारा कोड रन होता है, ठीक है। कंपनी के लिए आप बैठोगे, सिंटैक्स एरर वगैरह ना हो, इसके लिए मतलब पाइथन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। यहाँ पे लेंथ ले लिए मिनिमम ऑफ वर्ड 1 वर्ड 2, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली सजेस्टेड कि आप इसको एक कांस्टेंट में असाइन कर लो एंड देन टेक इट हियर। देन हम लोग का यहाँ पे आई हो गया है, यहाँ पे अपेंड कर दिए और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ़ इट इज़ लेस देन दैट देन वी आर अपेंडिंग इट। और यहाँ पे हम लोग को एक कुछ नहीं करना, अब बस रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है। लेट्स रन दिस, might be okay, right। so यही सब चीज पता नहीं चलता जब आप doc पे लिखते हो। will have to create a string also, right? I have created it here, not sure why it didn't copy, okay, I have not selected that, so that's why it left, okay। so basically हम लोग को एक मतलब not defined error आ गया था because okay word 1, ठीक है, वर्ड 1 में आई में हम लोग का इशू आ रहा है। क्या इशू है, नो एट्रीब्यूट अपेंड, ओके, ठीक है। रेस्ट, ओके, हम लोग इसको एज अ बेसिकली एरे अगर लेते तो हम लोग उसमें अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट नाउ बिकॉज वी हैव टेकन इट एज स्ट्रिंग, सो स्ट्रिंग में हम लोग कॉनकैट करते हैं डायरेक्टली। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, रेस्ट
प्लस इक्वल टू डायरेक्ट कॉन्कैट कर देंगे, ठीक है। उसमें हम लोग को अपेंड वगैरह का यूज नहीं करना होता। अपेंड तब यूज करते अगर हम इसको एक एरे रखते और एक एक करके लेटर्स को अगर डालते तो, ठीक है। प्लस इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ पे भी लाइकवाइज हमको क्या करना है, I'll just copy this and paste it here, okay। बेसिकली अपेंड किसके केस में यूज होगा, इट विल बी यूज्ड इन array, ओके। एंड दिस इज फॉर स्ट्रिंग, अगर हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग बना रहे हैं तो वैसे होगा, ठीक है। कूल। सो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, वर्ड 2 होगा, ठीक है। यही सब चीज मिस हो जाता है डॉक पे एंड वी जस्ट मेक दैट मिस्टेक, ओके। सो आर ऑल द टेस्ट केसेस हैज बीन पास्ड एंड सक्सेसफुली हमारा पहला लीड कोड का प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिनिश हो गया। सो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, वी डिड इट। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी जगह पे कहीं भी कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट डाउन एंड साथ में सीखते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। और ऑल्सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज, प्लीज।